ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪੀਸੋਡ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 15ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਔਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। जी हाँ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫੋਲੋਵਰਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਤੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਦ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਬਾਣੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਰਾਨ, ਬਾਈਬਲ, ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਜੋ ਕੰਠਸਥ ਸੀਗੀਆਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚੋਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਸਰੀਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ 11-12 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ, ਜਤਿਨਨਾਥ ਦਾਸ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਗਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣਗੇ ਲੋਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਲਾਅ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲਿਖਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੈਗੇ, ਸਭ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੈਗੇ, ਸਭ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਸਭ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਭ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਆਦਮ मारे आजाब है ये ढाई मसीत अजाब, यानी कि इंसान को मारना इतना बड़ा पाप है जैसे किसी धर्म स्थान को गिरा देना या मंदिर या मस्जिद को गिरा देना।
और धर्म स्थान को तो फिर भी हम बना सकते हैं, लेकिन इंसान अगर एक बार खत्म हो गया, मर गया, वो दोबारा कभी नहीं जी सकता। इसलिए इंसान और इंसानियत सबसे पहले है हमारे लिए, यही शिक्षा लेके चलते। आपने भी उनके दस्तावेज दिए हैं लोगों को ना, यहाँ देखा होने ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ परिषद ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜੁੜਾਵ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਸ ਤਰਫ ਨੂੰ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜਾਵ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜਾਵ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜਦੋਂ मैं थोड़ा हिंदी च भी बोलना। हाँ जी, हाँ जी, हमारे दर्शक हिंदी भी है, पंजाबी भी हाँ है। हाँ हाँ, मैं वही कहना चाह, जब पार्टीशन हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, उस समय उससे पहले जो आपने ये देखा होगा बलवंत मोटर्स करके, एक बलवंत मोटर्स करके पूरे उत्तराखंड में, बरेली में, यूपी में, तो ये बलवंत सिंह जी थे जो हमारे पिताजी के भुआ के बेटे थे, जो बलवंत एनक्लेव आज बन रही है यहाँ रेलवे स्टेशन फाटक के साथ में। वो उस समय के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और गोविंद बल्लभ पंत जी ने उन्हें अपना दत्तक पुत्र बनाया हुआ था, एमएलसी नॉमिनेट हुए थे। क्या बात है। उन्होंने बुलाया पिताजी को कि आप आइए, और हमारे दादाजी को। अच्छा जी। तो पहले बरेली में आके रुके, फिर कोटद्वार चले। कहाँ से बुलाया, कहाँ से? पेशावर से, पेशावर से, पाकिस्तान से। ओके, फिर कोटद्वार चले गए। तो ये तो बहुत पुरानी बात होगी फिर, ये जो उनका ये है बंटवारे के आसपास, ये बंटवारे के बाद की बात है, बंटवारे के लगभग की बात है। अच्छा, पिताजी को शुरू से ही, पिताजी जब भी जहाँ जाते थे उनके साथ 10-15 बक्से ग्रंथों से भरे हुए रहते थे। तो वो जब वहाँ कोटद्वार पहुँचे, कोटद्वार रहे, हमारे चाचा जी भी वहाँ रहे, 2 चाचा जी थे हमारे, वो भी साथ में गए वहाँ पे, वो परिवार आज भी है वहाँ पे। तो वहाँ पर आदरणीय भैरवधर धुलिया जी, जो आज सुधांशु धुलिया जी हमारे अभी जस्टिस थे हाई कोर्ट में उत्तराखंड में, और इस समय सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस है। अच्छा। उनके दादाजी थे भैरवधर धुलिया जी, वो भी उस समय के एमएलए एमपी रहे हुए थे। ये हेमपाल पत्रिका का प्रकाशन उन्हीं के वहाँ हुआ, कोटद्वार। पिताजी ने इसमें काफी कुछ जो है वेदोपनिषदों और सबके बारे में लिखा। ये प्रति हमारे पास एक इससे पुरानी वो प्रति है, 2 प्रतियां हैं। हाँ जी, ये भी वहीं की है। तो वहाँ पर जब इन सबको पता चला, वीरचंद सिंह गढ़वाली जी, ये भी पिताजी को बहुत मानते थे, अभी मैं उनकी चिट्ठी दिखाता हूँ आपको, और जगमोहन सिंह नेगी जी, मेहरबान सिंह नेगी जी, फिर वहाँ पर बैरिस्टर मुकंदी लाल, उनके भी लेटर पड़े हुए हैं पिताजी के पास। तो जब लोगों ने जानना शुरू किया, देखना शुरू किया, भी गुरु परंपरा से हैं और वेद उपनिषद शास्त्र की पूरी उनको जानकारी है, कंठस्थ है उन्हें, तो धीरे धीरे फिर उनका प्रचार और बढ़ता गया। हालांकि उससे पहले के भी मैंने आपको फोटो दिखाई अभी संत कृपाल सिंह जी महाराज की, ये संत कृपाल सिंह जी महाराज के हाथ की चिट्ठी लिखी हुई है। जी हाँ, मानव केंद्र। ये चिट्ठी ऐसी है, इसमें वो लिख रहे हैं गुरु बाबा बलवंत सिंह जी महाराज, और वो इनवाइट कर रहे हैं, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन्स उन्होंने बनाई थी। ये है 1973 की चिट्ठी। तो उसमें पिताजी ने और इन्होंने मिलकर ही बनाई थी। ये संत कृपाल सिंह जी महाराज उनके गुरु भाई थे पापा जी के। अच्छा जी। बाबा सावन सिंह जी महाराज के शिष्य थे, और संत कृपाल सिंह जी महाराज के, जो सावन कृपाल आश्रम आजकल चलते, देखा होगा आपने, उनके गुरु भाई थे पिताजी। तो जहाँ भी उन्होंने जाना तो पिताजी को साथ लेके चलना उन्होंने हमेशा। ये फोटो है, ये पिताजी बैठे प्रवचन कर रहे हैं, संत कृपाल सिंह जी महाराज बैठे हुए, जय गुरुदेव जी बैठे हुए हैं, और ये अरब के संत बैठे हुए हैं। प्रवचन पिताजी, जब भी पिताजी आते थे तो बाबा संत कृपाल सिंह जी महाराज माइक पिताजी की तरफ कर देते थे, यहाँ तक मैं ले आया, अब आगे आप लेके चलिए। इतना ज्ञान था उन्हें। तो जब ये सब ज्ञान के बारे वहाँ पता चला कोटद्वार में, गढ़वाल में, तो वहाँ पर फिर ये सारे लोग जो है उन्हें मानने लगे। अब देखिए, ये आदरणीय चंद सिंह गढ़वाली जी के हाथ की लिखी चिट्ठी मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये
चंद सिंह गढ़वाली जी के हाथ की लिखी चिट्ठी है और 8 पेज की चिट्ठी है, ये पहला पेज है। तो 4 लेने पड़ेगा समझ लीजिए, इसमें 4 लेने। इसमें असल में वो भैरवदत्त धुलिया जी और चंद सिंह गढ़वाली जी का कुछ आपस में बात हो गई थी, तो इसमें चंद सिंह गढ़वाली जी पिताजी को लिख रहे हैं कि सेवा में श्रीमान बाबा बलवंत सिंह जी सादर प्रणाम। आपकी प्रबल इच्छा है कि मैं भैरवदत्त धुलिया और चंद सिंह गढ़वाली के बीच में जो कुछ मनमुटाव चल रहा है, इसका बीज बचाव करें। आपकी इस महानता हेतु अनेक धन्यवाद। आपका कथन है कि मनुष्य समाज के लिए जीने और समाज मनुष्य की रक्षा के लिए बना हुआ है। आपने अपनी लेख मालाओं में वेद, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब के अनेक उदाहरण देकर प्रमाणित किया है कि आत्मा ही ईश्वर है, जीव आत्मा का पर्यायवाची है। मतलब मानव धर्म एक है और सर्वश्रेष्ठ है। आपने सौर मंडल की उड़ान की हुई है। देखिए क्या लिख रहे हैं चंद सिंह गढ़वाली जी पिताजी के बारे में, आपने सौर मंडल की उड़ान की हुई, क्योंकि इन्होंने बैठ के सारा पिताजी के कितना ज्ञान है, कितना कुछ है, उन्हें सब इन्हें मालूम था। इस तरह से ये पूरा देखिए कितना कुछ लिखा हुआ। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। ऐसे ही भैरवदत्त धुलिया जी की, बैरिस्टर मुकंदी लाल जी की, और बहुत चिट्ठियाँ ऐसी हैं, बहुत हस्तलिखित ऐसी हैं जो कभी आगे वाले हम आगे फिर बैठेंगे आपको मैं दिखाऊंगा। जब ये सब ज्ञान की बातें जब वहाँ पे पता लगनी शुरू हुई सबको, तब वहाँ पे आदरणीय ओम प्रकाश जी जो गौ माता ट्रस्ट के पूरे भारतवर्ष के अध्यक्ष थे, उनकी अभी पीछे डेथ हुई है कुछ साल पहले। मैंने फेसबुक पे शेयर भी किया था उनका फ़ोटो पिताजी के साथ। तो उस समय वो जिला प्रचारक थे संघ के, आरएसएस के। जी हाँ। तो वहाँ से वो पिताजी की इतनी ज्ञान और इतना कुछ देखते हुए उन्हें अपने साथ लेके आए कि भी आपकी यहाँ भी ज़रूरत है हमें, क्योंकि इतना आपको जो सारे ग्रंथों का ज्ञान है ये आम आदमी तक कैसे और पहुँचे, और संघ की भी यही चाहत है। तो तब पिताजी को वो साथ में लेके आए। फिर जब वो साथ में लेके आए तो वहाँ से फिर आप देखिए ये चिट्ठी, ये पिताजी प्रवचन कर रहे हैं। ये केपी सुदर्शन जी आदरणीय सरसंघ चालक जो रहे हैं पीछे, आदरणीय सुदर्शन जी वो बैठे हुए हैं, ये चिरंजीवी जी बैठे हुए हैं, पिताजी प्रवचन कर रहे हैं। देखिए जी, ठीक है। इसके साथ ही इतने बड़े बड़े सम्मेलन अटेंड किए पिताजी ने। मैं आपको ये परम आदरणीय बाला साहब देवरस जी, अच्छा उनका लेटर है ये? हाँ, ये उनका लेटर है पिताजी के नाम, बाबा बलवंत सिंह जी भल्ला। क्या कितना कुछ कौन सा है सर? 15 इसमें 1987 का। जी हाँ, 1987 का। ऐसी आदरणीय परम आदरणीय रज्जू भैया के हाथ की भी लिखी चिट्ठी। अच्छा। और जब भी ये घर पे आते थे, यहाँ रुद्रपुर में आते थे, तो ये हमारे घर जरूर आते थे। आदरणीय रज्जू भैया जी, आदरणीय सुदर्शन जी मेरे घर में भी रुके हुए हैं। ये बैठ के प्रवचन सुनते थे। मैं केशव कुंज जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है, मैं छोटा था उस समय, मेरे ख्याल है 10th में था या 9th में। पिताजी ने मेरे से बोला अच्छा दिल्ली जा रहे हो? मौसी के पास जा रहा था मैं। तो ऐसा करना, वहाँ हुआ ना केशव कुंज, रज्जू भैया जी से मिल लेना। वहाँ मैं पहुँचता हूँ तो वहाँ पर उनका जो कार्यभार देखते थे रज्जू भैया जी का, वो कभी यहाँ रहे हुए थे जिला प्रचारक। तो वहाँ पे जब मैं जाता हूँ तो वो मुझे ऐसे, मैंने कहा रज्जू भैया जी से मिलना है, तो मुझे ऐसे देखने लगे सारे, ये छोटा सा सरदार लड़का है, ये रज्जू भैया जी से मिलने आया। तो हाँ, ये पुरानी बात है, 93 की शायद बात हुई है, 4 की हुई ऐसे। तो फिर उन्होंने कहा आप बैठो। फिर उन्होंने ध्यान दिया, उन्होंने कहा आप अच्छा उनके बेटे तो नहीं है बाबा बलवंत सिंह जी भल्ला? मैंने कहा हाँ जी। कह रहे जो गोल सफ़ेद पगड़ी पहनते हैं, सॉरी। मैंने कहा मैं उन्हीं का बेटा हूँ। कह रहे अरे अच्छा आप बैठो। रज्जू भैया जी नानाजी देशमुख जी के साथ कुछ विचार चल रहा है उनका। नानाजी देशमुख बहुत बड़ी हस्ती है। जैसे ही वो फ्री होते हैं मैं 2 मिनट आपको जरूर मिलाता हूँ। और कुदरती बात है 10 मिनट बाद वो फ्री हुए, तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे बाबा जी के बेटे आए हुए हैं। तो वो एकदम तुरंत निकले, अरे ओहो बाबा जी के तो प्रवचन, बाबा जी के जो उन्होंने इतना कुछ कहा हुआ है, वेद उपनिषद की सारी बातें मेरे कानों में आज तक गूंज रही हैं।
उनसे कहना 6 महीने बाद जयपुर में अधिवेशन है और वहाँ पर वो जरूर आए, और वो बैठे हुए चिरंजीवी जी, उनसे कहना हाथ से चिट्ठी लिख के देंगे बाबा जी के लिए, ऐसे नहीं जाएगी चिट्ठी। और मुझे फिर वो चिट्ठी दे के पापा जी के पास वापस में लेके आया। मैं वही चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, जब बात चली रही है, क्योंकि ये चीज़ें दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए, ये राष्ट्रीय सिख संगत का अधिवेशन था, 4th नेशनल कन्वेंशन राष्ट्रीय सिख संगत दिल्ली में। इसमें देखिए आप, ऑनरेबल ज्ञानी जैल सिंह जी जो प्रेसिडेंट वो थे उस समय, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, RS नरूला जी फॉर्मर चीफ जस्टिस हरियाणा हाई कोर्ट पंजाब, KS सुदर्शन जी उस समय, आदरणीय KS सुदर्शन जी ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी थे RSS के, और बाबा बलवंत सिंह जी भल्ला कन्वेनर शिरोमणि संत मंडल। ये सारे लोग इकट्ठे बैठ के वहाँ पे इन्होंने इतना बड़ा अधिवेशन, और इसके भी वहाँ पे इतने प्रवचन हुए पिताजी के। भोपाल में देखिए, अध्यक्षता बाबा बलवंत सिंह जी भल्ला, मुख्य वक्ता KP अग्रवाल जी और आदरणीय सुदर्शन जी, चिरंजीवी जी, और ये सब चिट्ठियाँ, ये सब इतना कुछ। अभी उन्होंने तो हिंदू और सिख एकता के लिए इतना काम किया, इतना काम किया है। ये देखिए, जगे धर्म हिंदू सकल भांड भाजे, इतना काम किया। उनका तो ये कहना था कि हिंदू और सिख एक माँ के 2 बच्चे हैं, वो कभी अलग हो नहीं सकते, एक परिवार है। हाँ, एक पहचान अलग दी है हमारे सिखों को, गुरुओं ने पहचान अलग दी है हमें, अपना मतलब पहचान क्या अलग दी है, हमें जिम्मेवारी दी है कि हमें हमेशा सही दिशा में चलना है, अपनी सोच को सही रखना है, सच में रहना है, मनुष्यता में रहना है, और सबकी सेवा करनी है। उनका ये कहना था, उसी चीज़ पे हम कोशिश कर रहे हैं चलने की। बाबा जी, जैसे अभी आप 15वीं पीढ़ी के वंशज हैं बाबा जी रहे, गुरु अमरदास जी के, आपकी और लगभग आइडिया होगा आपको कि कहाँ वंशज, जिससे इसमें आपकी पीढ़ी के वंशज कहाँ पर है, कुछ आइडिया है आपको? इस समय ग्वालियर में भी हैं, मिलक में हमारे दादाजी परदादाजी के नाम का है गुरुद्वारा वहाँ पर। अच्छा जी। हाँ, संगत आती है वहाँ पर, लेकिन पिताजी ने हमारे गद्दी लगाने से मना कर दिया था। उनका ये कहना था, जब हमारे 10 गुरु साहिबान के बाद गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जो अब जीवित गुरु है हमारे, वो तो उसके बाद फिर कोई संशय नहीं बचता, जो है वही। आते थे लोग, पैरों में पड़ते थे उनके, वो हाथ पकड़ के उनको कहते थे नहीं, मत्था टेकना है तो गुरु ग्रंथ साहब जी को टेको। तो वंशज तो हमारे हैं पूरे हिंदुस्तान में, फॉलोवर्स भी हैं, वंशज भी हैं। तो बाबा जी की कौन सी शिक्षाएं इस समय आप याद करते हैं, उन्होंने आपको क्या सीख दी और समाज को? और शिक्षा हमेशा उनकी यही रही कि गुरु ग्रंथ साहब जी और उनकी बाणियाँ जो हैं उनमें ध्यान लगाओ, उनको पढ़ो। उनका संदेश था, एक पिता एकस के हम बालक, यानी कि हम सबका पिता एक है और हम सब उसके बालक हैं। मनुष्यता एक है, कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति पाति नहीं, कोई धर्म नहीं। जब इंसान के अंदर उस ईश्वर ने भेदभाव नहीं किया, सबके अंदर एक खून दिया, एक रंग दिया, सब कुछ दिया, तो हम अलग अलग कहाँ से हैं? सबसे बड़ी शिक्षा तो उनकी यही थी, किसी से भेदभाव नहीं करना, प्रेम से बोलना है, कर्म अपना करना है, परिवार भी देखना है, भाईचारा भी रखना है। आप समाज को, आज के समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे युवा पीढ़ी का भटकाव है, हम देख रहे हैं कि नशे की प्रवृत्ति भी है, रील्स आ गई हैं, सोशल मीडिया आ गया है। मेरा तो संदेश यही है, सबसे पहली बात कि हम सबको मिलके रहना चाहिए, अपने काम में ध्यान लगाना चाहिए, फिजूल की बातों में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ये सोशल मीडिया में और चीज़ों में इतना कुछ आता है आज के टाइम में कि लोग तो सोशल मीडिया पे ही लड़ जाते हैं, ठीक है ना। विवाद अगर बढ़ाना चाहें, मतलब कहते हैं बदबू को अगर आप उड़ाना चाहो तो जितनी मर्जी उड़ा लो, तरीका लेकिन ये है बदबू को दबाओ, खुशबू को फैलाओ। तो मेरा संदेश ये है, युवाओं को मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए, नशे नहीं करने चाहिए, झगड़े नहीं करने चाहिए, परिवार में ध्यान लगाना चाहिए, अपने बच्चों का, अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। मेरा तो यही कहना है, मेरा यही संदेश है।
इसी में तरक्की है, इसी में सब कुछ है। आपका आपका मन नहीं हुआ टीचर रहे, गुरु भी रहे, जी। अगली पीढ़ी के वंशज जिन्होंने स्टडी भी की, सब चीजें, उनका जो शिक्षा थी, उनका जो ऑरा था, उनका जो संदेश था, मैसेज था, वो आपके थ्रू और स्प्रेड होता? देखिए, जब मेरे घर में ये सारी सब कुछ प्रवचन होते थे, सब कुछ होता था, हमारे एक फीलिंग ये आती थी कि हम बहुत बड़े ख़ानदान से हैं, और क्योंकि छोटे थे, इतनी समझ थी नहीं, लेकिन रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी ने कोई ऐसा डेरा नहीं बनाया, इस तरीके का कुछ मठ नहीं बनाया कि जहाँ पे आके भाई, जैसे आजकल के टाइम में आप देखो कितने गुरु और कितने कथित संत बने हुए हैं जी। कि चढ़ावा आए, ये आए, लोगों को बरगला के उनकी परेशानियों को कि भाई तेरे अंदर ये परेशानी है, ये मैं ठीक कर दूंगा, ये मेरे को दे, वो मेरे को दे, ऐसा चीज़ थी नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो सच था, सिर्फ अंदर से अभाव था पैसे का, तकलीफ़ें ज़रूर थी, हम कोई उस वहाँ थे, हम पाकिस्तान में हमारे पास बहुत कुछ था, जब यहाँ आए वो चीज़ें नहीं थी, लेकिन सोच वही थी, बहुत बड़ी सोच थी। बल्कि पिताजी को तो उनके फॉलोवर्स अपने साथ पहले ही ले आए थे देहरादून में, लेकिन वो चीज़ नहीं थी। और अच्छा, हमें ये लगता था कि बहुत बड़े हम ख़ानदान से, तो ध्यान हमारा पढ़ाई में भी था और इन चीज़ों में भी था। लेकिन जैसे 11th-12th इस तरफ आए, 10th के बाद में आया, तो पिताजी ने मुझे बोला, बेटा आप अच्छे से पढ़ाई भी करो और आप मेहनत करो, ये चीज़ें आपको बाद में आ जाएंगी। और जब कुदरती 12th तक तो मुझे ये लगता था हमारे पास बहुत कुछ होगा, ये है। बाद में मैंने देखा, मैंने कहा नहीं यार, हम तो किराए के मकान में रहते हैं, हमारे यहाँ भी राशन आना है, उसका कैसे इंतज़ाम होना है, क्या होना है। मैंने, आप यकीन मानिए, 12th करते ही मैंने ये छोटा सा एक ठेका मिला ALP कंपनी में, रबड़ों पे प्रिंट करने का। वहाँ से मैंने, सामने कॉलेज था, वहाँ बैठता था और भागता था काम देखने के लिए, फिर बैठता था, फिर भागता था। और वहाँ से जो मेरी जर्नी शुरू हुई है 96 से, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बाबा जी की ये दूरदृष्टि कहा जाएगी कि उन्होंने भाप लिया था कि हम उस स्ट्रगल में बच्चे हमारे ना पढ़ पाए, जिस स्ट्रगल से हाँ, हम लोग बिल्कुल बाहर आए। बिल्कुल, आपने सही बोला। और उन्होंने ये भी बोला मुझे कि बेटा बहुत अच्छे आप जा रहे हो और समझ रहे हो, ईश्वर की तरफ भी आपका ध्यान है, लेकिन अभी आप ये करो, और जब वो समय आएगा फिर से, और अब वो समय मुझे नहीं पता, हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका लिखा हुआ इतना कुछ है हमारे पास, उनकी हम लिखते हैं, बाकी सब चीज वाली भी हैं आप सब संभाली हुई। जैसे अभी लेटर आप दिखा रहे हाँ हैं, हाँ, जो ये तो चीजें बहुत आप छोटी सी, बाकी एक बहुत छोटी सी आपको मैंने अच्छा। बताया, उनका बहुत कुछ है जो हमें करना वो है। भी देखेंगे किसी नेक्स्ट बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दिखाऊंगा मैं आपको ये फिर बताना चाह रहा हूँ, मैं सबको ये कहना चाह रहा हूँ, देखो फाइनेंशियली अभाव में थे हम, हमें वहाँ से शिक्षा मिली, हमने मेहनत करी। मैं हूँ, मेरा भाई भी है, वो अपना अलग काम कर रहा है, मैं अपना अलग कर रहा हूँ, मेरी बहनें भी हैं, बड़ी सिस्टर भी है, वो भी मेहनत करके अपना सब वजूद बना रहे हैं। मतलब आज हम एक शहर में लोग जानते हैं, एक पहचान बनी है, पिताजी की तरफ से तो है एक पहचान, मेहनत करके हमने अपने आप भी बनाई, कोई कमी नहीं है आज हमारे पास। बस कहना नहीं चाहता मैं कुछ भी, लेकिन कोई कमी नहीं है, बहुत ईश्वर का दिया है। तो अगर सही राह मिले, सही रास्ता मिले, तो हम सब बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन अपना माइंड सेट सही रखना है हमें बस। जी, बहुत धन्यवाद, आप आपको चंदा टीवी पे आपने टाइम दिया। नेक्स्ट एपिसोड में दर्शकों हम बाबा जी की लिखतों के ऊपर बातचीत करेंगे, जो वो छोड़ के गए हैं उसके ऊपर बातचीत करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।